So, beta, we are solving this question number 7 in your sheet. So, in this question, a trial balance is given. A trial balance is given. What is trial balance? Trial balance is a list of balance where we record asset and expenses on debit side, liabilities, capital, and income on credit side. Okay? What you have to do, you have to make an income statement. So before making income statement, we have to start with revenue. We have to start with revenue. So I will highlight the items which are treated as income and expense. I will ask from you all and you have to help me out. So first of all, come to this ordinary good purchase and then ordinary good and then revenue. This is revenue and this is ordinary good purchase. Sometime in trial balance, rather than sparing two rows, we write the item in single row. Like what they did, purchase and revenue. These both are mentioned in this first line. How I will know whether something is revenue or purchase? Purchase is an expense, so it will be on the debit side, and revenue is an income, it would be the credit side. So what's in both of these? Which is revenue? The credit side. The credit side, 648,500 is the revenue. And this one, 47,400 is the 447,000, 4,74,000 is the expense. Now come again forward. There is written inward and written outward. Written inward is treated as expense because we deduct written inward from revenue. Anything which will reduce your revenue is also an expense. And written outward is treated as income because this is deducted from purchases. So written outward will be, so here again the problem is both are in single line. So which one is written inward and which one is written outward? Written inward reduces the income. Written inward reduces the income. It is treated like expense. It is an item like expense. So it would be on the debit side. It would be on the debit side. This one, sorry. And that 500 would be written outward. Trade receivable and payable. We don't record trade receivable and payable in income statement. So no use. Sundry expenses, yes. What do you think about sundry expenses? Is it expense or income? Expense. 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 Achha ji, what about furniture? Furniture Asset. vehicle. Assets. That's an asset. Assets. Rent and insurance. That's an expense. Expense. What about others, guys? I need participation from others as well. What about interest received? Income. Income. What about loan? Loan. Liability. That's a liability. Liability. We don't record this. Bad debt. Achha, bad debt is an expense. Expenses of two types. Some expenses are those in which you have to pay the cash. Like if rent is an expense, then you have to pay the rent. Wages is an expense, then you have to pay the wages. Insurance is an expense, you have to pay the insurance. So some expenses are cash expenses. Some expenses are cash expenses. What does this mean? Whenever these expenses arises, our cash become reduced, our bank balance become reduced. But there are some expenses which are non-cash expenses, which are non, means there is no problem with cash. So one of them is bad debt. What is bad debt? Sometime a customer become insolvent, a customer become bankrupt. कभी कभार हमारा कस्टमर यानी उसकी लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं एसेट से, उसके कर्जे बढ़ जाते हैं जो कि एसेट उसके पास अवेलेबल होते हैं उसके अगेंस्ट। तो कोर्ट फिर उसको रिलैक्सेशन देती है और कहती है कि जितने पैसे आप दे सकते हो दे दो, बाकी पैसे आपके माफ हो जाएंगे, छोड़ देंगे। तो कभी कभार हमारा कोई कस्टमर होता है, उसका बैलेंस हम माफ कर देते हैं, उसको पैसे छोड़ देते हैं, तो ये भी एक किस्म का लॉस है। और लॉस हमेशा एक्सपेंस होता है क्योंकि लॉस से क्या होता है, आपका इनकम कम होती है। सो बैड डेट इज अ टाइप ऑफ अमाउंट, इज अ टाइप ऑफ अमाउंट
Basically, we want to receive this amount from our customer, but our customer become insolvent, bankrupt. His liabilities are greater than his assets, so he cannot recover this amount. So this is a loss. और लॉस भी एक्सपेंस होता है. डिस्काउंट रिसीव. income, Yes. Discount receive is income. Wages and salaries. expense, Okay. Lighting and heating. expense, Expense. बैंक. नो सर, बैंक नहीं आता. ड्राइंग नहीं आती. कैपिटल नहीं आता. अच्छा, देर आर टू मोर आइटम. वन इज सी फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी. बेसिकली, yeah, what is that? हाँ, these are also expenses. Whenever you import something from outside, whenever you buy something from other countries, not from your local country, not from your current country, like you live in Saudi Arabia, if you want to buy anything from outside of the world, like from USA, from France, then you have to pay to more expenses against purchase price. आप कोई भी चीज अगर बाहर से बाय करते हैं तो एक तो होती है परचेज प्राइस, कि वो चीज कितने की है. गाड़ी है तो वो गाड़ी कितने की है. पेन है तो वो पेन कितने का है. लेकिन जब आप उसको अपने मुल्क मंगवाएंगे, ट्रांसपोर्ट करवाएंगे वहां से, जिस कंट्री से आपने बाई किया अपने मुल्क तक, को आपको दो चार्जेस देने पड़ते हैं. दो तीन देने पड़ते हैं, पर यहाँ दो लिखे हुए हैं. उन चार्जेस को कलेक्टिवली हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं. उन चार्जेस को हम कलेक्टिवली कैरेज इनवर्ड बोलते हैं. तो सम टाइम क्या होता है, कैरेज इनवर्ड अलग से दिया होता है. सम टाइम कैरेज इनवर्ड ब्रेक करके दिया होता है. कैसे ब्रेक करके दिया होता है, कि हमने कोई चीज बाहर से मंगवाई, तो जब बाहर से मंगवाएंगे तो हमें किराया देना पड़ेगा. उस किराए को बोलते हैं फ्रेट. FREIGHT. किराया. किराया, फेयर, फ्रेट. तो सी फ्रेट होता है. एयर फ्रेट होता है. एयर फ्रेट मतलब जहाज के जरिए मंगवाया, एरोप्लेन के जरिए मंगवाया. सी फ्रेट मतलब शिप के जरिए मंगवाया. ठीक है. इसी तरीके से जमीन के जरिए लैंड फ्रेट हो सकता है, रेलवे फ्रेट हो सकता है. तो डिफरेंट तरीके से हमें किराया देना पड़ता है. वो किराया भी हमारा क्या एक्सपेंस है. अच्छा, ये जो है ये जाएगा परचेजेस में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा ये वाला एक्सपेंस. क्योंकि ये एक्सपेंस तब अराइज होता है व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड योर कंट्री. तो अमूमन हम परचेजेस जो है ना, परचेजेस रॉ मटेरियल अगर हम परचेज कर रहे हैं, फिनिश गुड हम परचेज कर रहे हैं, तो हम वो बाहर मुल्कों से करते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, क्वालिटी अच्छी होती है. तो बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, अगर कोई गुड्स वगैरह आगे सेल करनी है तो वो कोशिश करते हैं फॉरेन कंट्री से बाय करते हैं, वो सस्ती पड़ती है. अगर वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट बाहर से बाय करते हैं. तो उसमें हमें सी फ्रेट देना पड़ता है. जब वो प्रोडक्ट हमारे मुल्क आ जाती है तो हमारे मुल्क के टैक्सेस हैं वो पे करने पड़ते हैं, अदरवाइज वो गुड आप रिसीव नहीं कर सकते. उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी. सो ये दोनों जो है ना बेसिकली कैरेज इनवर्ट की तरह है. समटाइम आपको कैरेज इनवर्ट पेपर में दे देगा, कैरेज ऑन परचेज पेपर में दे देगा. और समटाइम वो क्या करेगा, कैरेज इनवर्ट को ब्रेक करके दे देगा. सी फ्रेट इतना, इंश्योरेंस इतनी, और कस्टम ड्यूटी इतनी. ठीक है ना, एयर इंश्योरेंस, सी इंश्योरेंस और कस्टम ड्यूटी इतनी. तो ये हमारे कैरेज इनवर्ट के पार्ट होते हैं. तो ये हम परचेजेस में लिखेंगे, इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखेंगे. यहाँ तक बातें क्लियर है. Yes. ओके. सो आई एम स्टार्टिंग अ क्वेश्चन, हम सॉल्व करते हैं. बेटा आप अपने वो बंद कर लें, क्या बोलते हैं. सो इनकम स्टेटमेंट का नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसका नया नाम है. ठीक है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू से. रेवेन्यू मुझे बताएं कितना है जी. 64850. 8. Yeah. 64855. इसमें से हम लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड कितना है सर. 1000. कितना है सर. 1000. 1000. 1000 मैं इसमें से लेस कर देता हूँ. ये हो जाएगा 647. 5. 647.
ठीक है। अच्छा जी, सर आगे चलते हैं। आगे आएगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है बेसिकली इसमें हमें नहीं पता होता कि हमने जो सामान सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो एक इनडायरेक्ट वे होता है जिसमें हम एसेट को इंक्लूड करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री को इंक्लूड करते हैं, देन हम परचेजेस ऐड करते हैं, देन परचेज रिटर्न होता है माइनस करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं, और आखिर में जो आंसर आता है वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसका फॉर्मेट आपको याद होगा, मैं लिखता जाता हूँ। सबसे पहले इसमें आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। ये क्वेश्चन में गिवन होती है। फिर इसमें ऐड करते हैं हम लोग परचेजेस। फिर अगर कैरेज इनवर्ट है तो वो ऐड करेंगे, कैरेज इनवर्ट नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? सी फ्रेट आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा कस्टम ड्यूटी, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो सामान को परचेज करते वक्त अराइज होती हैं। और उसमें से लेस करेंगे हम दो चीजें। एक को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। मैं रिटर्न आउटवर्ड लिख देता हूँ। और उसके अलावा है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा जी। अच्छा सर, सबसे पहले आ जाए ओपनिंग इन्वेंट्री। हाउ मच इज ओपनिंग इन्वेंट्री? 46। 46,000. 46,000। तो हम लिख देते हैं 46,000। 46,000, ठीक है। एंड नाउ देन परचेजेस। परचेजेस इज 474,000। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चंस करने होंगे। देन आई विल राइट सी फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी। सी फ्रेट इज 600, कस्टम ड्यूटी इज 1800। नाउ आई विल राइट परचेज रिटर्न एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेज रिटर्न क्लोजिंग इन्वेंट्री तो वैसे ही आता है, यू शुड रिमेंबर दिस। सो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, तो ये देखें रिटर्न आउटवर्ड है। कितना है? 500। और क्लोजिंग 500. क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा सवाल के लास्ट में दी होती है, ट्रायल बैलेंस के बाद दी होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में दी होती है। तो 500 इज रिटर्न आउटवर्ड एंड 64,400 is the closing inventory. Kindly total this, sum this all. 46,000 plus 474,000 plus 600 plus 1800 minus 500 minus 64,400. 457,500. 7 4,575,000. 500. So this is known as cost of sales. इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप लोग भी ऐसे ही काम कीजिएगा कि इस सारे का सम किया, और नेक्स्ट रो में आप ये अमाउंट लिखिएगा, जो भी टोटल है नेक्स्ट रो में अमाउंट लिखिएगा। जब नेक्स्ट रो में लिखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन भी देनी पड़ेगी ये है क्या। एंड कोई चीज माइनस करनी हो तो ब्रैकेट जरूर लगाया करें। लेस का वर्ड भी लिखा करें और ब्रैकेट भी लगाया करें, दोनों किया करें। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? ये सिक्स फोर Gross सेवन फाइव profit. हंड्रेड नेट रेवेन्यू है, और ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। इसको इससे लेस करें। माइनस लिखा हुआ है ना, तो ये इससे माइनस हो जाएगा। जो आपका नेट रेवेन्यू है 647,500, ये इससे माइनस हो जाएगा। 190,000. 1,90,000 like this, 190,000. Yes. And this is known as gross profit.
ओके। ना उसके बाद क्या होगा, लेस एक्सपेंसेस लिखेंगे, लेकिन अगर कोई अदर इनकम है तो हम अदर इनकम लिखेंगे। अगर कोई अदर इनकम है तो हम अदर इनकम लिखेंगे। अदर इनकम कैसे पता लगेगी, उसके आगे रिसीव को बढ़ा रहा होगा, ट्रेड रिसीवेबल के अलावा। तो ये देखें, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये क्या है हमारी, ये दोनों हमारी अदर इनकम है। ये देखें, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, ये हमारी अदर इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव कितना है गाइस, 1200। डिस्काउंट रिसीव कितना है, 5500। सो 1200, 5500, टोटल बताएं कितना हो जाएगा बेटा। हाउ मच इज द आंसर, महा बेटा, आर यू देयर? 6700. Yeah, I'm calculating. Calculating, you are not responding. Otherwise, whenever I start the class, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. वो फाइन कहाँ चला गया बेटा? I'm listening. Oh, let's see. Okay, okay, okay. So, mashallah, you Saudi people are mashallah very nice. You, whenever we ask anything, mashallah, you do respond. It look like mashallah जागे हुए हैं आप लोग, full battery charge है आप लोगों के. You people are very energetic, mashallah. So 5500 plus 1200, this would be 6700. Okay. And what you will do, you will add this. You will add these both. You will add these both. 1,90,000 plus 6,700. Simra beta, do you understand what we are saying? What we are doing? Yes, sir. Yes. Okay. Have you watched the lectures of income statement? Yes, sir. Okay, okay, okay. I know you might be facing some difficulties, you might be facing some problem. I will keep an extra class for that purpose. So if there is any problem and if you are facing an issue, we will cover it inshallah. Acha, what we will do, beta, this is our gross profit, ठीक है? And this is other income. So we will add these both in We order to get get total 196700. 196,700. दिस इज अवर टोटल इनकम, ये हमारी क्या आ गई, टोटल इनकम आ गई। ये हमारा ग्रॉस इनकम थी या ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा, इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। इनकम की दो सोर्सेज होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे क्या करना है, अभी आगे हमें एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। क्या करने हैं, एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो हम हेडिंग देंगे लेस एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, एक्सपेंसेस को हम शुरू से देखते हैं। तो ये सिंड्री एक्सपेंसेस है, ठीक है, सबसे पहले तो ये जाएगा। फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली नीचे जाएंगे। तो पहले जाएगा सिंड्री एक्सपेंसेस, डेट इज 16,600। तो मैं लिख देता हूँ सिंड्री एक्सपेंसेस, 16,600। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे जाऊंगा। अब देखें, ये जो सी फ्रेट है ये आप मैनेज कर चुके हैं, ये हो गया। कस्टम ड्यूटी भी कर लिया, ये आपने वहां लिख दिया था, क्या बोलते हैं इसमें, ऊपर लिख दिया था। तो ये एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस अगर एक बार रिकॉर्ड हो गया दूसरी बार रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर उसके बाद फर्नीचर नहीं आएगा, व्हीकल नहीं आएगा। रेंट एंड इंश्योरेंस आएगा, यस सर, कितना है सर, 18,000 लिख देते हैं। सर आगे चले, रेंट एंड इंश्योरेंस आ गया 18,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव है, ये हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। बेड डेट का मैंने बताया, ये एक एक्सपेंस है, ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैंने बताया था ये लॉस होता है एक किस्म का। हमें कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजन उसकी लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं, एसेट के अगेंस्ट वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। तो ये पैसे फिर हम छोड़ देते हैं, मिल ही नहीं सकते। उसके पास चाय पानी के पैसे भी नहीं है, कहाँ से लेकर आएंगे। तो 900 हम लिखेंगे यहाँ पे एज एन एक्सपेंस।
अच्छा, इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम है अब इररिकवरेबल डेट। सर आगे चलें। आगे हमारे पास आएगा वेजेस एंड सैलरीज आएगा, हीटिंग एंड लाइटिंग आएगा, तो ये दोनों भी लिख देते हैं। एक मिनट सब्र करें, मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि हमारे पास जगह आ जाए। जस्ट वेट, थोड़ी देर लगेगी, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अच्छा सर, अब क्या करेंगे सर? अब वेजेस एंड सैलरीज लिख देते हैं और क्या नाम है, ये जो है ना लाइटिंग हीटिंग, ये लिख देते हैं। चले आ जाए, वेजेस एंड सैलरीज, मैं खाली वेजेस लिख देता हूँ, या चलो लिख देते हैं। और उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरीज कितने हैं गाइस? 76,400। एंड हीटिंग एंड लाइटिंग कितना है सर? 8,000। मैं 8,000 लिख देता हूँ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मैं लास्ट टाइम बताया था कि ये डेबिट क्रेडिट कॉलम का चक्कर नहीं होता, ये वर्किंग कॉलम होता है, इसमें हम टोटल करते हैं। तो आपने क्या करना है, टोटल करना है। आपने क्या करना है, टोटल करना है। मुझे बताएं ये टोटल कितना हुआ, जस्ट ये, लाइक 119900. 16,600 प्लस 18,000 प्लस 900 प्लस 76,400 प्लस 8,000, इन सब का टोटल करना है। द अमाउंट इज 119900. 119,900। 900. zero zero. ठीक है, ये हमारे आ गए टोटल एक्सपेंसेस। हाउ वी फाइंड दिस अमाउंट? इट्स वेरी इजी। मैं बच्चों को बता दो, हमने एक्सपेंसेस को प्लस किया है, जितनी भी एक्सपेंसेस इन सबको प्लस किया और यहाँ लिखा है। सर ये 6,700 कैसे आया? हमने प्लस किया 1,200 प्लस किया 5,500, हमने यहाँ लिखा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो भी अमाउंट आती है वो इन कॉलम को प्लस माइनस करके आती है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये जो हमारे पास टोटल इनकम आई थी, ये जो हमारे पास ग्रॉस इनकम आई थी, इसमें से ये एक्सपेंस लेस करना, दैट्स इट। अगर आंसर प्लस में आ रहा है, Wait, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो ये आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। बेटा व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या कहना चाह रहे थे? it's loss. It's minus value. नो, इट कैन नॉट बी लॉस, because we are having 196,700 and it is 119, it is 1 lakh 96, it is 1 lakh 19,000, how it can be loss? Yeah, I put the 119900 value first. Sorry. No issue. It's 76,800. 76,800, this is the word profit for the year. Is it clear कि ये आपको देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इसको जरा यूं कर लेता हूँ, आप इसकी पिक भी लेने, कि इस तरीके से आपने 2 कॉलम इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और इसका नाम चेंज है, आजकल इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जी बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये वाला, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। जब भी सॉल्व किया करें ना इनकम स्टेटमेंट के सवाल, तो एक पेज छोड़ा करें, क्योंकि हमें एसओएफपी भी बनानी है इसके बाद। तो एसओएफपी के लिए इनकम स्टेटमेंट का पता होना जरूरी है। So whenever you solve the homework, whenever you will go for solving the homework, do do leave one page empty, blank पेज छोड़ दिया करें एक पेज। उसकी वजह है कि आगे जाके हमें वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, आगे जाके हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एसओएफपी की, तो उसके लिए हमें ब्लैंक पेज छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, इज इट क्लियर बेटा? देख लें, कोई मसला हो तो बताएं ताकि मैं आगे जाऊं। Here. It's ओके, चलिए जी, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है,
ये आपने करना है अभी। मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपसे हेल्प ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ये होमवर्क है, बट हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आइटम है, देखें पहले, जब भी इनकम स्टेटमेंट बनानी हो पहले आप सारे आइटम देख लें। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रायल बैलेंस में जो चीज डेबिट पे आती है या वो एसेट होता है या वो एक्सपेंस होता है। मैंने एक वर्ड करवाया था आपको, डेट क्लिक, याद है? Yes. डेट क्लिक। और मैंने इस डेट क्लिक में बताया था कि ये जो डी होता है इसका मतलब होता है डेबिट, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट, डी फॉर ड्राइंग। और सी का मतलब बताया था क्रेडिट, एल फॉर लाइबिलिटी, आई फॉर इनकम, के फॉर सी फॉर कैपिटल। सो ये चीजें जो होती है ना क्रेडिट साइड पे आती हैं। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल ये आपको हमेशा क्रेडिट साइड पे मिलेंगे। और ये चीजें जो एक्सपेंस, एसेट और ड्राइंग ये आपको डेबिट साइड पे मिलेंगे। तो सबसे पहला आइटम है आपका कैपिटल। कैपिटल आता ही नहीं इनकम स्टेटमेंट में, तो इग्नोर करें। ड्राइंग आता ही नहीं, इग्नोर करें। प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी चीज उसके अपने नाम से आए, प्रॉपर्टी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये एसेट है, ये आता ही नहीं इनकम स्टेटमेंट में। फिक्सचर एंड इक्विपमेंट ये आता ही नहीं इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है। मोटर व्हीकल है, ये आता ही नहीं इनकम स्टेटमेंट में। मोटर व्हीकल क्या है? नॉन करंट एसेट है, नहीं आते। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल नहीं आते। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता। वाई सर? देखिए इनकम स्टेटमेंट होती है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो सिर्फ दो आइटम आते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। अब आगे दिया मोटर व्हीकल एक्सपेंस आएगा सर? यस सर आएगा। सर इसके बाद लिखा हुआ जनरल एक्सपेंसेस आएगा सर? यस सर आएगा। इसके बाद दिया हुआ वेजेस आएगा सर? यस सर आएगा। इसके बाद दिया हुआ इंश्योरेंस आएगा सर? यस सर आएगा। कैरेज इनवर्ड, यस सर आएगा सर। ठीक है। इसके बाद दिया हुआ डिस्काउंट रिसीव इनकम है सर? आएगा सर? यस सर। रेवेन्यू सर इनकम है? आएगा सर? आएगा। इसके बाद दिया हुआ है ऑर्डिनरी गुड परचेज एक्सपेंस है सर? आएगा सर। उसके बाद दिया हुआ है रेवेन्यू रिटर्न, रेवेन्यू रिटर्न भी आएगा सर। और उसके बाद दिया ओपनिंग इन्वेंट्री, देन दिया आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। सो मैं कहूंगा आप लोग सॉल्व करें, एटलीस्ट ग्रॉस प्रॉफिट तक तो कर लें। एटलीस्ट ग्रॉस प्रॉफिट तक कर लें। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? जीपी तक कर सकते हैं, अभी पॉसिबल है।